बार जरा जल्दी से सुनाना चाहती हूं कि जिस नेपाल के स्टूडेंट लीडर से मैंने बात की है, मेजर जनरल आप भी सुनिए, आप हर्षवर्धन जी, संगीत रागी सर, सब लोग सुनिए, विवेक जी, फराज जी, ये क्या कह रहे हैं। और जरा इसको सुनने के बाद मैं अपनी डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि इन्होंने नेपाल की उस हिंसा के बारे में क्या बताया, जरा चलाइए एक बार। आशुतोष, आपका बहुत स्वागत है। आपके चेहरे पर मैं अभी भी चोट देख सकती हूँ। आपकी तस्वीरें नेपाल प्रोटेस्ट की बहुत वायरल हुई हैं, लेकिन मैं सवाल आपसे सबसे पहले यही पूछूंगी कि क्या ये छात्रों का प्रोटेस्ट था? Was this a student protest? आशुतोष, You mean, was this a student protest? Were the students behind this protest that happened in Nepal? Students were a part of it for sure. Like, it was done by Gen Zs. Obviously, like, Gen Zs are under 28, so most of them are definitely students. Yes, it was done by a group of students, we would say, yeah. Why I ask this is, आशुतोष, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह की हिंसा नेपाल में देखी गई उससे लोग बहुत हैरान हैं। आपका जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे जला दिया, वहाँ पर बहुत सारा तोड़फोड़ हुई है, वायलेंस हुआ है, a lot of violence happened in Nepal. So people are asking that are students behind that violence? No. They were like, let's say, infiltrators. I mean, it's more of and they're like, I don't guess student did that. There were people who were not supposed to be there. They did it. The word is this infiltrator. And yes, I would say like students were not part of it. At least most of the students were not for sure, because students, it's this basic sense, like people will not do stupid things for no reason at all. So yeah, it were not students. ये बहुत बड़ी बात आशुतोष कह रहे हैं कि छात्रों में गुस्सा था, वो विरोध जरूर कर रहे थे, लेकिन ये घुसपैठिए थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को टेक ओवर कर लिया, जिन्होंने हिंसा भड़काई। आशुतोष, यू आर सेइंग दैट दीज वर इन्फिल्ट्रेटर्स। हाउ डिड दे इन्फिल्ट्रेट? हाउ डिड दे कम इनटू द पिक्चर? ये कैसे आ गए? It's like just random criminals, and I also heard that like from some police station, like some criminals got out. Also, there are obviously bad people out there, and they just got an opportunity. They just got an opportunity, and they're like, yeah, let's go. And like people were just drunk and just firing some building out there, and it was just very sad thing to see. आशुतोष, आपने शायद ये भी एक जगह कहा कि इस पूरी वायलेंस का, एक हिंसा का एक कोई मास्टरमाइंड था. There was a mastermind who kind of planned it for everyone. Is that true? Yeah, this could be true for sure, because if you just see the pattern, yes, there must be somebody in order to do this sort of things. I'm not able to find the pattern yet, but there must be some kind of pattern for sure. Because why would somebody do it in that large scale? So yeah, there is somebody for sure. Like, it's just like if you just connect the dots and if you see things around, there must be somebody. ये बहुत बड़ी बात आशुतोष कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि आप डॉट्स कनेक्ट करिए कि छात्रों में गुस्सा है, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जितने बड़े स्केल पर ये हुआ है, इसका एक मास्टरमाइंड जरूर होगा जिसने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, वरना इस तरह की हिंसा नेपाल में नहीं होती. मैं ये मानकर चल रही हूँ आशुतोष कि यू आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस वायलेंस. A student will not be happy about the this regime violence. change. I'm not happy about the violence that happened afterwards. बिल्कुल. आपकी संसद जला दी गई. Your parliament was burned down and it was a very sad visual. बहुत दुखद है वो तस्वीर. वो सब देखकर लोग पूछ रहे हैं कि छात्र तो ये नहीं करेंगे. Students will not do this. For sure, they will not do this. There were like some other people who came into the scene. They just wanted to be the part of it, and more of like they were there with the intention to do so, so they did it. अब जो आपने सुना है, मैं जरा एक बार उसे रिपीट कर देती हूँ. हर्षवर्धन जी, ये छात्र नेता हैं और ये कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि सरकार बदले, हमारा विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन जो हिंसा हुई है उसके पीछे लगता है कोई और मास्टरमाइंड है. ये हिंसा कभी छात्र नहीं चाहते थे. ये देश के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई है, ये हम नहीं चाहते थे. और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड लगता है इफ यू जॉइन द डॉट्स. अब मैं ये इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि जो नेपाल में हो रहा है उसे देखकर कुछ लोग भारत में बहुत खुश हैं. ऐसा लग रहा है वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो उनकी मंशा ही ये है कि ये भारत में भी हो जाए. देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो ये कि मैं खुद छात्र संगठन में रहा हूं. छात्र राजनीति के रास्ते इधर आया पत्रकारिता में आने से पहले.
और मैं ये जानता हूं कि छात्र गुस्सा होते हैं, छात्र तोड़फोड़ भी करते हैं, छात्र अराजक भी कुछ हद तक होते हैं, और कई बार असभ्य समाज को सभ्य बनाने के लिए अराजकता जरूरी भी होती है। लेकिन कभी भी जो छात्र ढंग का होगा वो कभी भी आगजनी नहीं करेगा, कभी भी इस तरह की तोड़फोड़ नहीं करेगा। वो ऐसे छात्र संगठन कर सकते हैं जिनके अराजकता जिनके मूल में हो, जो बंदूक की गोली से क्रांति की बात करते हो, जिनके लिए आइडिया ही आता है हिंसा से, वायलेंस से। वरना स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट इस तरह की जो चीजें हैं वो इसमें यकीन नहीं करती। उसका गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी होती है, झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहां जो हुआ इसको जरा देखिए। जिस स्टूडेंट लीडर से आपने बात की, जिस स्टूडेंट लीडर भी नहीं कहेंगे, वो अभी जेनजी का है, तो बच्चा उसकी वो भी उम्र शायद नहीं होगी। वहां पर जिस तरह से चिन्हित करके एक एक नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री, उनके घरों को मैपिंग की गई। उनके घर में अगर उनकी पत्नियां हैं तो भी उनको बख्शा नहीं गया, घरों को आग लगा दिया गया। एक झलनाथ जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी आग में जलकर मर गई। जिस तरह से वित्त मंत्री को हमने दौड़ाकर पीटते हुए देखा, ये अराजकता एक खास डिजाइन की है। और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ अल्ट्रा कम्युनिस्ट उसमें शामिल हुए छात्र आंदोलन में, और उन्होंने नेपाल को बर्बाद कर दिया, आग लगा दी, स्वाहा कर दिया। मेरा यह मानना है कि अभी भी वो देश खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। उस देश के जो भी नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनको खड़ा होना चाहिए। ये चाइना और अमेरिका का प्लेग्राउंड बन गया। जब से राजशाही खत्म हुई, हिंदू राष्ट्र था, उससे भी कम्युनिस्टों को चिढ़ थी, और वो भी एक बड़ी वजह थी। लेकिन कम्युनिस्ट एक गवर्नेंस का मॉडल नहीं दे पाए, और वो साफ साफ दिखता है। हिल्टन होटल जला दिया, क्या किसी ने मैसेज भेज दिया कि केपी शर्मा ओली का भी उसमें स्टेक है? कहीं जाकर कोई सिंह दरबार जला दे रहा है, कहीं कोई राष्ट्रपति भवन जला दे रहा है। सही बात। जेलों को तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है। ये प्योर जो आइडिया होता है, जो हिंसक कम्युनिस्ट आइडिया है, ये वो दिखता है। और मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा कि इसमें ऐसे अतिवादी अराजक लोग घुसे और उन्होंने नेपाल को बर्बाद कर दिया, आग लगाकर स्वाहा कर दिया। आप जो बात कह रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, मुझे नहीं पता है विवेक जी इसमें इतना अम्यूजिंग क्या है, हंसने की वजह आपकी क्या है? मैं बताता हूं। मैं एक बार नहीं, मैं आपसे आप ही के पास आ रही हूं। आई विल डेफिनेटली आस्क यू, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूं ये सवाल आपसे क्योंकि जो कुछ हुआ है उस टूल किट को जरा समझिए। वहां पर छात्र नेता कह रहे हैं कि हम गुस्सा अपना निकालना चाह रहे थे, लेकिन उस भीड़ का फायदा लोगों ने उठाया और इस हिंसा और आगजनी पर उतारू हो गए। अब भारत में भी बहुत बार ये कोशिशें की जा रही है कि लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करें। हमने इससे पहले कई बार ऐसी तस्वीरें देखी हैं, ऐसे आंदोलन देखे हैं जिन्हें आपने भी समर्थन किया। वहां स्थिति बिगड़ सकती थी अगर वहां गोली कोई चल जाती या फिर किसी तरह की हिंसा भड़क जाती। कोशिश क्या यही थी? आज फिर वही कोशिश है। नेपाल हो रहा है, भारत में भी होगा। क्या करें? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोले क्या? नहीं बोलिए सर, आप कौन सा बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे, और ये कोई आपसे कह भी नहीं रहा है। लेकिन भारत जिंदाबाद बोलिए, भारत जिंदाबाद बोलिए, और उसके हित में जो है वो करिए। आपने आप सुनिए, अम्यूजिंग क्या है यहाँ पे? अम्यूजिंग ये है कि कंफ्यूज बैठे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं चाइना और अमेरिका का दोनों का प्लेग्राउंड बन गया। साहब, दोनों का कैसे बन सकता है? दोनों का कैसे बन सकता है? इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप।